Question says find the coordinates of the points on the y-axis. So first of all, you see the point that you have to find, that point is on y-axis. So first of all, we will consider a point on the y-axis. So consider a point on y-axis. So let the point be named as A and coordinates will be 0, y. Remember, whenever the point is to be considered on y-axis, then that point will be having x coordinate as 0. This is one of the point. Now about this point, they are saying it is at a distance of 10 units from the other point. Now this is point B. So we have point B given to us minus 8, 4. What else they have given us? They have given us the distance between the 2 points as 10 units. So see, the first point that was on y-axis, we have considered it as 0, y. Second point given to us is minus 8, 4. We have named it as B. And now the distance between the 2 points is given as 10 units. So AB is equal to 10. So this is the information that we have. Now whenever we are given the distance between the 2 points, so we will use the distance formula AB, and the formula will be x1 minus x2 whole square in first bracket, then y1 minus y2 whole square in the second bracket, whole under root. This is the formula. Now how to use this formula? We have been given the 2 points A and B. We will consider one of the point as x1, y1. The other point we will consider as x2, y2. And now let us substitute these values in the formula. Now on the left side we have AB. AB is given as 10. On the right side we have the root sign. Within the root sign, in the first bracket you have x1 minus x2. So your x1 is 0. So from 0 you will be subtracting x2. So it's minus x2. So when you subtract x2, that is minus 8, it will become plus 8. Then we have y1 minus y2. Y1 is y. From y you will be subtracting 4. Now you can see in this equation we have root sign on the right side but no root sign on the left side. So to remove this root sign, first of all we are going to take squaring both sides. हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स टू रिमूव द अंडर रूट साइन. सो लेफ्ट साइड का स्क्वायर करने पे 100, राइट साइड पे आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, रेस्ट विल रिमेन एज इट इज. नाउ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर यू कैन निगलेक्ट 0, so you will be getting 8 square, and in the second bracket it is y minus 4 whole square. This will give you 100. This will become 64. इसको इधर ले आइए, minus 64. On the right side you are having y minus 4 whole square. This will give you 36. y minus 4 whole square. अब इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं. एक तरीका तो यह है कि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर उसको मैं फैक्टराइज करके y की वैल्यू निकाल लूँ. दूसरा देखिए आसान तरीका क्या है कि मैं स्क्वायर रूट कर दूँ. यहाँ होल स्क्वायर है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए वो होल स्क्वायर के अंदर है, तो मैं होल स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर दूँ. रूट 36, इधर से स्क्वायर हट जाएगा. तो जब रूट ऑफ 36 करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 6. अब y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इस इक्वेशन में आप प्लस 6 लीजिए और तब देखिए y की वैल्यू क्या आती है. तो एक बार हम लेंगे y माइनस 4 के साथ इज इक्वल टू 6. सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10. अच्छा, केस 2 में देखिएगा, अब हम y माइनस 4 के साथ माइनस 6 ले लें. हमने माइनस 6 ले लिया तो y की वैल्यू आएगी माइनस 6 प्लस 4. सो y विल बी माइनस 2. अब मेरे पास y की दो वैल्यू आ गई.
अब मुझे ये पॉइंट फाइंड करना था. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर हमने पॉइंट क्या सपोज किया था 0, y. तो इसमें y की पहले फर्स्ट वैल्यू डालिए तो आएगा 0, 10 और सेकंड वैल्यू डाल दीजिए y की यहाँ पे -2 तो आ जाएगा 0, -2. सो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स. इसमें अगर आप चाहते देखिए तो आप पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते, फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करके तब y की वैल्यू निकालते. तो मुझे ये आसान लगा कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ओपन ना करके स्क्वायर रूट कर दूं. इधर +-6 हो जाएगा, एक बार +6 से सॉल्व कर लूँ, एक बार -6 से. दिस इज क्लियर टू यू नाउ. Question says a point A is at a distance of √10 units from the point. Now let us name this point as B. So according to the question, there is a point A. Coordinates are not known to us. And the question says that this point A is at a distance. So the distance given to us √10 from the other point, and the coordinates of the other point B are given as 4, 3. Right. Now we know that every point has two coordinates. One is the x coordinate and the other one is the y coordinate. The first coordinate, which is the x coordinate, it is called abscissa. And the second coordinate, which is called ordinate, that's y coordinate. So every point has two coordinates. The first one is called the abscissa and the second one is called the ordinate. So for example, if you consider this point B, so point B has abscissa 4 and the ordinate is 3. याद रखिएगा हर पॉइंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो ये जो पॉइंट ए है इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दोनों हमें अननोन है. अब आगे हम क्वेश्चन में पढ़ें तो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा. अब ये जो पॉइंट ए है इसका जो ऑर्डिनेट है यानी कि सेकंड वाला कोऑर्डिनेट ये इट इज़ ट्वाइस द एब्सिसा, ये एब्सिसा का ट्वाइस है. मतलब कि अगर मैं इसका एब्सिसा के मान लूँ तो जो ऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2k. फिर से देख लो, ऑर्डिनेट मतलब सेकंड वाला ये होता है, ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा. तो आप जितना भी एब्सिसा को सपोज करेंगे, हमने एब्सिसा को सपोज किया k, तो ऑर्डिनेट उसका ट्वाइस होगा 2k. अब आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो पॉइंट हैं और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है. डिस्टेंस को नाम दे दें ए बी. आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है. अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 मान लें, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और इनके बीच में डिस्टेंस हो गया √10. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी लिखेंगे. फॉर्मूला रहेगा x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर. ये पूरा अंडर रूट में. ठीक. अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे मैंने ए बी लिखा है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है √10. राइट साइड में अंडर रूट में फर्स्ट ऑफ ऑल x1 - x2. तो x1 हमने किसको लिया रखा है k माइनस x2 4 होल स्क्वायर. फिर है y1 - y2. तो y1 कौन है 2k माइनस y2 कितना है 3.
अच्छा, अब ये अंडर रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं। उन्होंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, इधर से रूट हट गया तो 10, राइट साइड से भी हमारा रूट हट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा k-4 का होल स्क्वायर प्लस 2k-3 का होल स्क्वायर। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या आएगा देखिए, a का स्क्वायर प्लस ये हमारा b है, b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये आपका a है प्लस ये b है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये देखिए, अब देखते हैं कितना आ रहा है। के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, यह आएगा 4k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12k। अब सबसे पहले के स्क्वायर वाले लाइक टर्म्स, ये दोनों 4k स्क्वायर विल गिव यू 5k स्क्वायर। उसके बाद k वाले माइनस 8k माइनस 12k माइनस 20k, 9 प्लस 16 25, और ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस 15, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास बचेगा इज इक्वल टू 0, तो उसको लेफ़्ट पे लिख लो या राइट पे लिख लो। अब इस पूरी इक्वेशन में हम 5 से रिड्यूस कर दें, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3, तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको हम लोग फैक्टराइज करें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो हमारे पास आएगा माइनस k माइनस 3k प्लस 3, इसमें कॉमन हो जाएगा k, इसमें कॉमन हो जाएगा 3k माइनस 1। ये हम लोगों ने फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर आ गए। अब हम वन एट अ टाइम इन फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करें, तो पहले k माइनस 1 को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। अब k माइनस 3 को इक्वेट करेंगे, k की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अब ये जो k की वैल्यू आई है, इन k की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट। सो पॉइंट A, अब देखिएगा, जो आपके पास पॉइंट A है उसको आपने सपोज किया था k, 2k। तो अगर मैं k की फर्स्ट वैल्यू 1 है, इन दोनों में 1 डाल दूँ, तो 1 यहाँ पे 2 इंटू 1 2, तो पॉइंट A हो जाएगा 1, 2। सेकेंड वैल्यू निकालूँ अगर, पॉइंट तो वही रहेगा। अब इसमें मैं k की सेकेंड वैल्यू डाल दूँ, तो सेकेंड वैल्यू k की कितनी है 3, तो यहाँ अगर 3 डाल दूँगा तो पॉइंट आ जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, दिस इज क्लियर टू यू। Now the question says, what point on the x-axis? First of all, we have to consider a point on x-axis. So let the point on x-axis be
नाउ लेट अस गिव नेम टू द पॉइंट एज ए। पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? अब क्योंकि पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो x, 0 ये हो गया आपका पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट ए है ऑन द एक्स एक्सिस, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को बी और सी नाम दे दूं तो जो ए है वो बी से और फिर ए जो है वो सी से इक्विडिस्टेंट है। तो देखिए ऐसे समझिएगा, ये ए है और ये जो दो पॉइंट्स थे इनको नाम दे दें बी एंड सी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो पॉइंट ए है ये बी से और फिर यही पॉइंट सी से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ए बी और ये जो डिस्टेंस होगा ए सी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। तो एक काम करते हैं कि पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ए बी के ऊपर और लेंथ ए बी फाइंड कर लें हम लोग, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले ए बी के ऊपर। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी पे लगाएंगे तो ए को x1 y1 मान लिया और बी को x2 y2 मान लिया और इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। चलिए ए बी निकाल लिया जाए। ए बी अंडर रूट में अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x1 की जगह आ जाएगा x और x2 की जगह आ जाएगा 5। y1 माइनस y2, तो y1 की जगह आ जाएगा 0 माइनस 2। अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अच्छा, इसमें तो आप 0 को निगलेक्ट कर दीजिए तो आपके पास बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस 4। सो विद इन द रूट वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर। ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -10x, ये आएगा 25 और ये आएगा +4, तो 25 + 4 29। तो ये हम लोगों ने ए बी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जब हम डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट करेंगे तो हम ए को x1 y1 मान लेंगे और ये जो हमारा c है इसको x2 y2 ले लेंगे। ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और ये कहलाएगा डिस्टेंस ए सी। तो चलिए डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट किया जाए। फॉर्मूला तो यही रहेगा, x1 माइनस x2। अब हमारे पास x1 कौन है? x1 तो यही है x, और x2 कौन है? -4। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x1 की जगह पे तो x ये है ना, x1 माइनस x2, तो x1 की जगह पे तो आ गया x। अब आपको x में से x2 को माइनस करना है और x2 है -4, तो जब नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ठीक। अब y1 में से y2, तो y1 कितना है? 0, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3। अब रूट के अंदर अगर हम लोग ब्रैकेट खोल के देखें क्या आता है, इसको खोलेंगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। अब इसमें तो ये 0, इसको निगलेक्ट कर दीजिए तो बचेगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x, ये हो जाएगा 16 + 9 दैट इज 25।
हमने डिस्टेंस ए बी निकाल लिया, हमने डिस्टेंस ए सी निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी और ए सी ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो हम इसको इक्वेट कर दें, ए बी को इक्वेट कर दें विथ ए सी। ए बी अंडर रूट में कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29। ए सी अंडर रूट में कितना है, अब x की वैल्यू निकालनी है। x आ रहा है रूट के अंदर, तो स्क्वायरिंग करके रूट हटा दिया जाए। तो रूट हट गया दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दें दोनों तरफ। अब x वाले एक तरफ कर लीजिए, माइनस 10x माइनस 8x, एक तरफ आ गया, 29 को उधर ले जाइए। इधर आ गया आपके पास 25, ये उधर जाएगा तो माइनस 29, तो ये आपके पास माइनस 10x है, तो ये हो गया माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, सो 4/18 दैट इज 2/9। ये आपके पास आ गई वैल्यू फॉर x। अब ये जो x की वैल्यू आई है, आपने पॉइंट क्या सपोज किया था, देखिए x, 0, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2/9। So this will be your answer. Clear? Question says a point P is equidistant from these 2 points. Now let us name these 2 points as A and B. So according to the question, this point P is equidistant from A. We have named this point as A and this point as B. What's the meaning of this? It means distance of point P from A, that is PA. We can mark this point as A and this one as B. Now the question says P is equidistant from A and from B. That means you can say this distance of point P, which is 2, -1, it is equidistant from B and C. Whatever is the distance PA, same is the distance PB. That means we can say distance PA is equal to distance PB. So PA is equal to PB. So let's find this distance PA. Now x1 minus x2, what we will do, you can consider, you can consider any point as x1 y1. See, it's not necessary कि आप फर्स्ट वाले पॉइंट को ही x1 y1 माने, आप सेकंड पॉइंट को भी x1 y1 मान सकते हैं। अच्छा, हम लोग करते क्या हैं, हमेशा देखते इसे, ये 2 पॉइंट हैं, किसी एक को x1 y1 मानना, दूसरे को x2 y2।
तो आप ये देखना कि इन दोनों पॉइंट्स में किसके पास वेरिएबल है, अननोन है। तो अननोन इसके पास है, तो हम इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2। देखिए दो पॉइंट्स होते हैं, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो और दूसरे को x2 y2। तो जब ये ऑप्शन हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए इन दो पॉइंट्स में से ये वाले पॉइंट के पास एक अननोन था ना a, उसी को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 ले लो। चलो इस फॉर्मूले में रखें, x1 कौन है, a, माइनस x2 क्या है, 2, y1 माइनस y2, y1 क्या है 7, माइनस, अब 7 में से माइनस करना है आपको y2, y2 कितना है -1, तो जब -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा +1। अब अगर इस ब्रैकेट को हम खोलें तो ये आएगा आपके पास a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अच्छा, इस ब्रैकेट को खोलने से पहले आप देखो तो इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको तो ऐड कर दो, 7 + 1 8 और फिर 8 का स्क्वायर कर दो 64, तो अंडर रूट में आ जाएगा a², यहाँ से आ जाएगा -4a, ये आएगा 64 + 4 68, तो ये आ गया डिस्टेंस PA। अब ऐसे हम डिस्टेंस PB निकालेंगे। अब डिस्टेंस PB निकालने के लिए जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, एक को x1 y1 मानना है, तो आप देखो अननोन इसके पास है, तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2, फॉर्मूले में अप्लाई करें PB, फॉर्मूला तो यही होगा। अब हमें चाहिए x1 माइनस x2, तो देखिए x1 तो है मेरा -3, अब उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है x2 को, यानी कि 2 को। फिर है y1 माइनस y2, तो y1 तो है मेरा a, अब a में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -1 को, तो जब -1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो बन जाएगा +1। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर देखो तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये सिंप्लीफाई कर दो, तो -3 एंड -2 ये हो गया -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25। अब इसको तो तुम्हें फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो a² प्लस b² प्लस ट्वाइस a इंटू बी, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा a², ये हो जाएगा 2a, ये आएगा 25 + 1 26, तो ये डिस्टेंस PA आ गया, ये डिस्टेंस PB आ गया। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल, तो इनको हम इक्वेट कर देंगे। PA हमारे पास रूट में आया है a² माइनस 4a प्लस 68, और PB आया है रूट में a² प्लस 2a प्लस 26। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दें पहले तो आ जाएगा a² माइनस 4a प्लस 68, इधर आ जाएगा a² प्लस 2a प्लस 26, a² कैंसिल आउट हो जाएगा, -4a, इधर आएगा -2a, 26 ये इधर जाएगा -68। तो जो लेफ़्ट साइड है आपके पास, ये तो हो गया आपके पास -6a, ठीक है, -2a और -4a। राइट साइड में हमको 62 में से माइनस करना है 26, ये आ रहा है आपके पास -42, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आ जाएगी 42/6, दैट इज 7।
यही आपको फाइंड करना था।